A very warm good morning to all. I, Dr. Namrata Gain, Associate Professor from the Department of Management, on behalf of the Bharati Vishwavidyalaya Durg, welcome to our guest, Dr. Usha Kiran Agrawal, Ma'am, Chancellor of the University, Shri Sushil Chandrakar Sir, Vice Chancellor of the University, Dr. H.K. Pathak Sir, Registrar of the University, Dr. Virendra Kumar Swarnikar Sir, Academic Head Dr. Alok Bhatt Sir, respected colleagues and my dear research scholar. In today's special guest lecture on methods of data collection. In today's program, Dr. Snehi Kumar Meshram Sir coordinating with me to smooth running of this session. I would like to invite Dr. Meshram to introduce our guest, special guest, Dr. Usha Kiran Agrawal ma'am. Sir, over to you. Namaskar ma'am. Namaskar ma'am. Namaskar all of you. I'm glad to introduce respected Dr. Usha Kiran Agrawal ma'am, MA PhD, Professor, Department of Psychology, Government, DPS, PG College, Raipur, Chhattisgarh. Her specialization from management and clinical psychology. She has 37 years work teaching experience. She has trainer associate for UGC Diabetes Capability Building Program, trainer for leadership training programs. She has contributed in government policy making such as Tejasvi Yoga 2015 and other remarkable policies. Under her supervision, 6 scholars have awarded PhD and 4 are working. She has represented many times her institute, UGC Delhi, UGC Mumbai and USA. She has a part of the committee related to national education policy of the state. Under her pilot stages, she has organized seminars and workshops and trained 139 professors from all over the state only in SAM. Apart from this, she has conducted many training programs. She has actively participated in many conferences and workshops of national and international level. She has received many grants from CG Cost, ICSSR, Rajiv Gandhi Shiksha Mission, and other remarkable agencies for many research projects. She has more than 20 publications including books, chapters, and other research papers. We are immensely fortunate to have the opportunity to hear your lecture today. Ma'am, please proceed. Thank you, sir. Ma'am, I over to you. To all the dignitaries, am I audible? Yes, ma'am, very audible. बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाया है। मैं सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और क्योंकि रायपुर में बड़ा शटडाउन हो गया है अचानक और यहाँ पे पावर कट है, तो कोई असुविधा हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और बिना देरी किए अपने प्रेजेंटेशन को शुरू कर लेती हूँ। आप मुझे बताएंगे कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं? स्लाइड शो में दिख रहा है? यस मैम, इज इट वेरी क्लियर? Yes, ma'am. जहाँ पर आपको कोई सवाल करना हो तो आप रोककर मुझे पूछ सकते हैं और इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक एक करके सवाल पूछें। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, इस बात पर चर्चा करने के लिए आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि डेटा क्या है और हम डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत होती। हम जानते हैं कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे हाथ में होते हैं। जैसे मैं बेसिकली साइकोलॉजी की हूँ, तो अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या इंटेलिजेंस का, बुद्धि का किसी के परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है, अगर मैं इसको देखने जा रही हूँ तो मुझे कुछ वेरिएबल्स अपने साथ लेने होंगे कि जैसे इंटेलिजेंस क्या है और परफॉर्मेंस क्या है। तो जो वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट है उनके बारे में हमें जानना है, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना है कि जो हायर इंटेलिजेंस के लोग हैं वो लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं या जो लोग लोअर इंटेलिजेंस के हैं वो लोग कम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा कलेक्ट करना होगा और हमारे को कुछ रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे।
ये रिसर्च क्वेश्चन जो होते होंगे, एक हाइपोथेसिस बनानी होगी और हाइपोथेसिस के आधार पर हमें ये देखना होगा कि हम जो डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी मेथडोलॉजी क्या है, किस मेथड से हम डेटा कलेक्ट करें। नॉर्मली जब हम एक रिसर्च प्रॉब्लम को तैयार करते हैं तो हमसे आरडीसी में या डीआरसी में ये पूछा जाता है कि आपने यही रिसर्च प्रॉब्लम क्यों फ्रेम किया है। जैसे हमने कहा कि आई वांट टू सी इम्पैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑन परफॉर्मेंस। मैंने कहा कि मैं बुद्धि का प्रभाव निष्पादन पर, परफॉर्मेंस पे देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे इम्पैक्ट शब्द ही मैंने क्यों यूज़ किया है, एज ए फंक्शन ऑफ क्यों नहीं यूज़ किया है। इन सब बातों का बड़ा मायने होता है और रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो नियमित तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी खराब यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ बच्चों को ऐसी अटेंडेंस दे दिया जाता है और यहाँ पे इसकी रिलायबिलिटी कम है। ऐसा ही हमारे रिसर्च के साथ होता है। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो रिसर्च करने हम जा रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी बहुत अच्छी हो और कोई उसके ऊपर क्वेश्चन ना उठाए कि हमारा रिसर्च ठीक नहीं है। इसके लिए हमें अपने रिसर्च क्वेश्चन और डेटा कलेक्शन का पर्याप्त ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि डेटा कलेक्शन हम कहाँ करते हैं। फिजिकल साइंसेस में तो करते ही हैं, सोशल साइंसेस में करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्रों में करते हैं। कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जहाँ पर हम डेटा कलेक्शन नहीं करते हैं, कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जहाँ डेटा कलेक्शन नहीं करते हैं। डेटा कलेक्शन की जो मैथडोलॉजी है वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो मेथडोलॉजी है वो करेक्ट रहे और साथ साथ हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो बायस्ड ना हो। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैडम हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रहा है तो हम क्या डेटा को बदल लें। तो हमें बहुत अचंभा होता है कि ऐसी बात बच्चे क्यों पूछ रहे हैं और डेटा को वो कैसे बदलें। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने डेटा के साथ कुछ टैम्परिंग की है, उसमें कुछ घटा बढ़ा के उसको ठीक किया है ताकि उनकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डेटा कलेक्शन ऑनेस्ट हो और ऑनेस्ट के साथ हम क्वालिटी एविडेंस को कैप्चर करें। हमको ये देखना है कि हमारे पास जब हम डेटा कलेक्ट करें तो वो रिच हो, साथ ही हमारा डेटा एनालिसिस भी रिच हो और जब हम एक रिजल्ट तक पहुँचें तो वो उन सारे प्रश्नों के जवाब दें जिनको हमने तैयार किया है, जो रिसर्च क्वेश्चन हमने पोस्ट किए हैं उनको, उन सारी बातों को वो ठीक तरीके से जवाब। तो फील्ड ऑफ स्टडी हमारी क्या होनी चाहिए। अब डेटा जो है वो दो तरीके से कलेक्ट होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है कि भाई आप या क्वालिटेटिव डेटा क्या है, रिसर्च की इंटेग्रिटी जो है उसकी अखंडता बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कैसे ठीक होनी चाहिए कि आपके जो डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, क्या आपके पास पहले से वो साधन थे या आपने नए तरीके से उन्हें विकसित किया है, या कहीं आपने उसको करेक्टली यूज़ किया है या नहीं किया है, या वो एपरेटस टेम्पर्ड है, क्या उसको आपने कुछ एडजस्ट कर लिया है। जैसे हम देखते हैं सब्जी खरीदने जाते हैं तो तराजू के नीचे उसने कुछ वेट लगा लिया है ताकि टमाटर का वज़न 3 पाव हो लेकिन वो दिखे 1 किलो। तो वो जो टेम्परिंग है वो सही नहीं। तो हम जब डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि हम कौन से तरीके से रिसर्च करना चाहते हैं, वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव, मात्रात्मक है या गुणात्मक है। इस बात का हम ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए हम डेटा कलेक्ट करें कि हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल ही अगर मात्रात्मक तरीके का है तो क्वांटिटेटिव तरीके से हो और क्वालिटेटिव तरीके का है, गुणात्मक तरीके का है तो क्वालिटेटिव तरीके का ही। अब यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो थोड़ा आसान है। जैसे तापमान को हमने डिग्रीज़ में नाप लिया, बड़ा आसान है। लेकिन अगर हम बाहर निकल के ये कहना चाहें कि आज का तापमान इतना होना चाहिए और उसके लिए हमें कोई लॉजिक देना पड़े कि आज का तापमान इतना होना चाहिए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे हमारे पास क्या ग्राउंड है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो। और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए हमें आंकड़े तैयार करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना होगा, तो वहाँ पे एरर्स बहुत सारे हो सकते हैं। डेटा कलेक्ट करते हुए हम ये ध्यान रखें कि हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है वो बहुत बेहतर। अब जब हम रिसर्च करवाते हैं और बच्चे लोग हमारे पास आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा डिज़ाइन मैडम बहुत बढ़िया है और ये विश्व का सबसे बढ़िया डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन में हम अपना रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और हमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
ऐसा नहीं है, हमें अपनी मैथडोलॉजी को भी ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ रिसर्च करते हुए हमें ये देखना है कि हमें हार्डवर्क, धैर्य और बहुत ही शांति के साथ रिसर्च करना है ताकि हम रिसर्च को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। कि जो डेटा कलेक्ट करने हम जा रहे हैं उसमें कोई फेकनेस, कोई बायस या कोई डिसऑनेस्टी ना हो, हमारी रिसर्च की इंटेग्रिटी पे कोई सवाल ना हो। कई बार हमने देखा, एक समाचार अभी आया था कि एक व्यक्ति ने दूसरे की पीएचडी को कॉपी किया, कॉपी ऐसे किया कि उसके पीएचडी में जो जो गलतियां थी उसको भी उसने कॉपी कर और फलस्वरूप उसके 3 साल के इंक्रीमेंट रुक गए और इससे उनका नाम बड़ा खराब हुआ। तो इस तरीके का रिसर्च कोई मायने नहीं रखता है। रिसर्च करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रिसर्च बिल्कुल ही कॉपीड ना हो, जेन्युइन हो और बहुत शुद्धता के साथ किया गया हो। तो इसके लिए डेटा कलेक्शन करते हुए उसमें हमें टैंपरिंग नहीं करना चाहिए। अब डेटा कलेक्शन कैसे स्टार्ट हो? तो सबसे पहले हमारे पास सैंपल होगा। भट्ट सर ने आपके सैम्पलिंग के बारे में भी एक क्लास रखी हुई है कि हम सैम्पलिंग कैसे करें। ये वाला टॉपिक चूँकि मेरा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रही हूँ कि हमारा सैंपल पूरे प्रतिदर्श को रिप्रेजेंट करना चाहिए, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर मैं रायपुर के किसी कॉलोनी में स्टडी कर रही हूँ और वहाँ 5000 लोग हैं और हर एक 100 में से एक व्यक्ति मुझे लेना है तो मेरे पास 500 लोग हो जाएंगे और वो अब जो 500 लोग हो जाएंगे वो मेरे संपूर्ण कॉलोनी को रिप्रेजेंट करें। तो कौन सी सैम्पलिंग है? रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। किस सैंपल को आपने कलेक्ट किया है ये आपको ध्यान रखना होगा और उसके साथ साथ उस पर डेटा कलेक्ट करना होगा। फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे डेटा कलेक्ट करने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। नॉर्मली आपने देखा कि जब से ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुई तो लोग सर्वेज बहुत करने लगे, गूगल फॉर्म्स भरवाने लगे। तो गूगल फॉर्म्स क्या ऑथेंटिक है? क्या उसका डेटा ऑथेंटिक है? क्या उसमें कोई त्रुटियां होती हैं या नहीं होती हैं? इसका हमें ध्यान रखना होगा, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो गूगल फॉर्म से हुआ है, किस मैथडोलॉजी से हुआ है, क्या वो सिंपल सर्वे है, क्या उसमें हमने किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है, क्या वो हमने सिलेक्टेड सैंपल पे किया है, क्या उसे सारे सैंपल पे जनरलाइज कर सकते हैं। ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए डेटा कलेक्ट करना होगा। अब डेटा कलेक्शन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो पहले हम आते हैं क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन क्या है। जैसे हमने कहा, आपने सुना होगा कि जो क्वालिटेटिव बातें होती हैं उसको लोग बड़ा जजमेंटल होके कह देते हैं कि फला व्यक्ति खराब है। अब उसने कह दिया, एक डेटा हमें दे दिया कि सामने वाला व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो खराब है, अच्छा नहीं है, लेकिन उसके प्रति उसके बारे में हमें एक ऑथेंटिक बात नहीं बताई कि वो खराब क्यों है। तो जब हम उसके बारे में एक ऑथेंटिक बात बताते हैं तो वो क्वालिटेटिव डेटा होता है कि वो ख़राब क्यों है, किस किस कारण से हमने देखा कि वो ख़राब है और ऐसा हमें क्यों लगता है। तो क्वालिटेटिव डेटा जो है नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जैसे आज का टेम्परेचर 44 डिग्री है, ये न्यूमेरिकल डेटा है। लेकिन हम कहें कि आज गर्मी बहुत है, ऐसा लग रहा है कि 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और क्योंकि वेदर बहुत हॉट है, सल्ट्री है, पसीना आ रहा है, इसलिए ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हुई लगती है। तो ये क्वालिटेटिव डेटा, गुणात्मक डेटा, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, विवरणात्मक होता है। और जो भी बातें विवरणात्मक होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होती हैं, उनको लिखना बहुत डिफिकल्ट है। और जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसको लिखना बहुत आसान होता है क्योंकि वो विवरणात्मक नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में, वो क्वालिटेटिव डेटा है। और जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें कैप्चर करना पड़ता है कि जैसे हमें लोगों की फीलिंग्स को देखना पड़ता है, उनके इमोशंस को देखना पड़ता है, उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को देखना पड़ता है, उनका परसेप्शन देखना पड़ता है। जैसे किसी गांव में यदि हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं जहाँ पे खुले में शौच करना, इस विषय पर हमें रिसर्च करना है, तो हमें वहाँ जाकर ये स्टडी करना होगा कि गाँव वालों की भावनाएँ क्या हैं, गांव वाले इस बारे में क्या सोचते हैं, टॉयलेट वो लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, उनकी क्या इमोशंस इससे जुड़ी हुई हैं, उनका सब्जेक्टिव परसेप्शन क्या है, खुले में शौच करना उन्हें क्यों अच्छा लग रहा है, इसको रोकने में सरकार को इतनी तकलीफ क्यों हुई। ये सारी चीज़ों को हमें कैप्चर करना होगा। तो यहाँ भावनाएं महत्वपूर्ण है, इमोशंस महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति के सब्जेक्टिव
परसेप्शन, यानी मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ, दूसरा व्यक्ति इसके बारे में क्या सोचता है, इसे हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं कि ए क्या सोचता है, बी क्या सोचता है, सी क्या सोचता है, डी क्या सोचता है। तो अलग अलग लोग क्या सोचते हैं, इसे हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा जो है हाउ एंड वाई पर स्टडी कि मैं कैसे और क्यों, किस तरीके से मुझे स्टडी करना है, कैसे और क्यों करना है, मेरे प्रोग्राम का हाउ एंड वाई क्या है, और मुझे किस लिए मैं ये स्टडी कर रही हूँ। तो हाउ एंड वाई जब मैं देखना चाह रही हूँ, डेटा कलेक्शन करना चाह रही हूँ इन्हीं दो मुद्दों पर, वो क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड होते हैं। आप देखिए यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड होते हैं। जब हमने एमसीक्यू लागू किया तो बड़ी दिक्कत हुई बच्चों को। उनका कहना था कि जो मल्टीपल चॉइस है उसको जवाब देने में हमें कठिनाई होती है। पहले क्या होता था कि हमने पूछा कि भाई बताइए कि रायपुर शहर कैसा है, मान लीजिए हमारे ये सवाल है, तो उसमें उन्होंने 10 पेज लिख दी। वहाँ पे उत्तर देने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ओपन एंडेड है, मुक्त है पूरी तरीके से। तो ओपन एंडेड बातों को लिखने में आप क्या लिख रहे हैं और कैसा लिख रहे हैं और उसका कंटेंट क्या है, उसकी सामग्री क्या है, इन सब बातों को देखना बहुत आवश्यक है। अब और जब हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे फोकस ग्रुप्स होते हैं। फोकस ग्रुप्स यानी 10 से 12 लोगों का एक ग्रुप बनाना होता है और वहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है, इंटरव्यू करना होता है। ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो ग्रुप डिस्कशन करने में आपको बड़ा फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी है। आप किसी को इनहिबिट नहीं कर सकते, बस अब चुप हो जाओ, इससे आगे नहीं बोलना है आपको, ऐसा आप नहीं कह सकते। वहाँ पे आपको डिस्कशन को फैसिलिटेट करना है। फैसिलिटेट करने के मायने क्या है कि आपको कहना है कि भाई बोलते रहिए, जब तक आप इस पर बोल सकते हैं आप बोलते रहिए। और आप उनसे पूछेंगे हाँ बताइए और क्या कहना चाहते हैं, खुले में शौच के बारे में आपकी और क्या राय है, इस गांव में ये डिफ़िकल्टी क्यों है, ऐसा आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बता पाएँ और आपके पास जो डेटा है वो सॉलिड डेटा हो, बहुत ही ऑथेंटिक डेटा। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी मैथडोलॉजी अभी हम पढ़ेंगे, मतलब 50 से ज़्यादा मैथडोलॉजी मैं आपको बताऊंगी डेटा कलेक्शन की। और उसमें आप देखेंगे कि फोकस ग्रुप डिस्कशन ही क्यों, मैं एक रिसर्च प्रपोजल लेकर कहीं गई तो मेरा रिसर्च प्रपोजल वहाँ रिजेक्ट हो गया। बताइए, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं लेकिन मेरा रिसर्च प्रपोजल एक्सपर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो मैथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए वो सही नहीं। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको फोकस ग्रुप करना चाहिए, आपको इंटरव्यू लेना चाहिए, आपको डिस्कशन करना चाहिए गांव में जाकर। और आप मानेंगे नहीं कि 3 बार मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हुआ और चौथी बार जब मैंने इन मैथडोलॉजी से काम किया तब जाकर मेरा वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और उस पर मैं काम कर। वो था कि गांव में जाकर जो महिला उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को स्टडी कर। कई जगह मैंने देखा कि जो महिलाएं होती हैं उनके पति काम कर रहे हैं और महिला उद्यमी को वो काम करने नहीं दे रहे। और इसके बारे में जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हस्बैंड्स जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं हमारे काम में और हमें काम नहीं करने देते और इससे उनको स्ट्रेस होता है और उनकी कोपिंग टेक्निक जो है वो प्रभावित होती है। तो ऐसी ऐसी बातें हमको फोकस ग्रुप डिस्कशन में पता चलती हैं जो हम नॉर्मली नहीं जान पाते। तो हमें अपना एक सारा प्रोग्राम तय करना पड़ता है कि हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो क्वालिटेटिव मेथड्स होती हैं वो सर्वे बेस्ड है। पहले तो हम सर्वे कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाकर काम करना है, किस गांव में जाकर काम करना है। कि मान लीजिए हम देखना चाह रहे हैं कि बीड़ी बनाने वाले लोग जो हैं या जो चूड़ी बनाने का जो उद्योग है वहाँ पर जो बच्चे काम करते हैं उनके क्या क्या मानसिक तनाव होते हैं, उन्हें क्या क्या मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और वो काम को ठीक से परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो वहाँ पे हमें पहले क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन करना होगा, मात्रात्मक रूप से सर्वे करना होगा और उस सर्वे के आधार पर हमें जाकर फिर उस पर क्वालिटेटिव स्टडी करनी होगी। अब हमें अपने क्वेश्चनियर को और क्लियर करना होगा, अपने मूल्यांकन को और बेहतर बनाना है। कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं क्वालिटेटिव में, क्या क्या मैथडोलॉजी है गुणात्मक रिसर्च की, तो इसमें हम और बातें ऐड कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, कुछ जो तकनीक है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ नए तकनीक ऐड कर सकते हैं।
नए इन्फॉर्मेंट सेट कर सकते हैं कि भाई हम किसी गांव में गए, मैंने गांव में काफ़ी काम किया है महिला उद्यमियों पे, तो बहुत इंटीरियर के गांव, अंतागढ़ जैसे क्षेत्रों में भी मैंने काम किया, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ नए इन्फॉर्मेंट्स आ जाते हैं, कहते हैं मैडम हम भी कुछ बताना चाहते हैं, जो कि हमारे सैंपल में नहीं है, हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है। हमारा सैंपल 500 लोगों का जो है वो हमने अलग कर लिया है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग और हैं जो कह रहे हैं कि हम भी उत्तर देना चाहते हैं, हम भी इसमें सहभागी होना चाहते हैं। तो मुझे उन लोगों को ऐड करना पड़ा, उनकी बातों को जोड़ना पड़ा और अपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस में उसको लेकर आगे चलना पड़ा। तो ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंटरैक्टिव इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू के मायने ये होता है कि आप जो बातचीत कर रही हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आप मुझे रोक कर पूछ सकती हैं, तो ये इंटरैक्टिव होगा। ऑनलाइन में क्या हुआ कि हमारा इंटरेक्शन कम हो गया, जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था वो अब होना बंद हो गया, और इसलिए हमें पता नहीं होता है कि हमारे सामने जो ऑडियंस बैठा है वो इंटरेक्ट करने के मूड में है या नहीं। तो इंटरेक्टिव इंटरव्यू के मायने क्या है कि मैंने एक सवाल पूछा, उसने कोई जवाब दिया, लेकिन कोई जवाब ऐसा है, जैसे मेरा एक रिसर्च था मैरिटल सेटिस्फैक्शन के बारे में, लाइफ सेटिस्फैक्शन के बारे में, जीवन संतोष कैसे होता है, इस पर एक मैंने रिसर्च किया। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग मैरिटल सेटिस्फैक्शन पर आकर वैवाहिक जीवन के बारे में बात नहीं करना चाहते और वहाँ पर रुक जाते। तब मुझे बार बार उनसे ये सवाल करना पड़ता था और उसको इंटरेक्टिव बनाना पड़ता कि आपको मैं इस तरीके से कन्विंस करूं कि आपके मन का अवरोध समाप्त हो जाए, इनहिबिशन समाप्त हो जाए और आप उत्तर देने के लिए बाध्य हो और उस इशू पर, उस मुद्दे पर ठीक से बातचीत करें। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एज एन इंटरव्यूअर अगर आप साक्षात्कार ले रहे हैं तो साक्षात्कारकर्ता को बाकायदा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इंटरव्यूवी है वो ठीक तरीके से आपके इंटरव्यू में भाग ले और सवालों के जवाब दे। यहाँ पर एक मैथडोलॉजी यूज होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसे हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या है कि हम इस तरीके से रिसर्च करें कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए, उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाए। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमने मल्टीपल तरीके से डाटा कलेक्ट किया, इंटरव्यू भी लिया, आमने सामने बैठकर बातचीत की, उनके स्क्रीन कैप्चर्स लिए, उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग की, उनका टेप बनाया, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग की और कहा कि भाई देखिए अब इतने तरीके से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, कोई भी डेटा हमारा गलत नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए किसी दिन मैंने किसी की बुराई की और किसी ने कहा देखिए उषा मैडम आपके बारे में ऐसा कह रही थी, तो सामने वाले ने हमें कहा कि नहीं वो ऐसा नहीं कह सकती। तो हमने टेप भी सुनाया, हमने वीडियो भी दिखाया और हमने अपने डेटा को वैलिड किया कि देखिए जो हम कह रहे थे वो सही है। यानी जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, क्वालिटेटिव मैथडोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगुलेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग है, जो आपका अनुसंधान का जो रिजल्ट आया है वो वैलिड हो। और वैलिड कैसे हो कि आपने उसमें इंटरव्यू का भी यूज़ किया, आपने स्क्रीन कैप्चर्स लिए, आपने फोटोग्राफी की, आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग की, आपने टेप किया, आपने फीलिंग्स को नोट किया, आपने सारी चीज़ों को नोट किया कि सामने वाले व्यक्ति का हेयर कलर क्या है, ब्लड टाइप क्या है, एथनिक ग्रुप क्या है और वो कहाँ रहता होगा। ये सारी चीज़ों को जब आप कलेक्ट कर लेते हैं तो वो होता है क्वालिटेटिव डेटा। और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना बहुत आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्चर को एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हमें क्या देखना है कि जो क्वालिटेटिव डेटा है उसमें टाइम बहुत लगता है, एफर्ट बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है। ये एक इन डेप्थ स्टडी कि मैंने 2004 में एक स्टडी को शुरू किया है, अभी 2010 हो गया है, लेकिन मेरी स्टडी कंटिन्यू। अब मैं उस गांव में जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि देखिए मैडम अभी तक स्टडी कर रही हैं या ये फिर से आ गई। मतलब इसमें आपको बोर नहीं होना, क्योंकि आपके स्टडी में कुछ बातें अभी भी अनछुई रह गई हैं जिसको आपको कलेक्ट करना है। तो डेटा को थॉरोली, एक्यूरेटली, सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना, फील्ड नोट्स बनाना, ड्राइंग्स बनाना, स्केचेस बनाना, ऑडियो टेप्स करना, फोटोग्राफ्स करना और जो तरीके यूज़ हो सकते
इन डेप्थ इंटरव्यू लेना, खुली आंखों से देखना कि जो व्यक्ति हमारे सामने आया वो कैसा दिख रहा है, क्या उसने पगड़ी पहनी है, उसके कपड़े कैसे हैं, कितने बटन्स लगाए हैं, कितने दिन से नहाया है नहीं नहाया है, बाल कैसे बनाए हैं, हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ों को नोट करना क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। और साथ साथ हमें डॉक्यूमेंट भी रिव्यू करना है। डॉक्यूमेंट रिव्यू के मायने क्या है कि इस फील्ड में और कितनी स्टडीज़ हुई हैं, उनको भी आपको देखना है और देखकर ये अपनी स्टडी के साथ उसको कोरिलेट करना है। अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। इसके बारे में कोई सवाल यदि हो तो पूछ लीजिएगा क्वालिटेटिव डेटा के बारे में। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 7 सेब रखे हुए है ना, तो 7 नंबर को हमने फोकस किया है। जब भी हम न्यूमेरिकल्स में कोई डेटा इकट्ठा करते हैं तो उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। जो अंक में होते हैं, जो मात्रात्मक होते हैं, ऐसे डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। जैसे मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, जो मैथमेटिकली कंप्यूट होता है, जो कि न्यूमेरिकल होता है। जैसे मेरे पास एक बुक शेल्फ है, एक किताबों का रेक है जो कि 3 फीट लंबा है, जिसका वजन 100 पाउंड है, जिसमें 2 कैबिनेट हैं, जिसकी कीमत 8,000 है। जब हम ऐसे बता रहे हैं तो उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। ये व्हाट से यानी क्या से संबंधित होता है। जब आप रिसर्च करने जाएं और क्या ढूंढें कि व्हाट आई वांट टू डू, मैं क्या करने वाली हूँ, तो उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। इसमें 4 तरीके के स्केल्स यूज होते हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। ये सारे स्केल्स को आप इसमें यूज करते हैं। इसमें सर्वे भी हो सकते हैं और दूसरी मैथडोलॉजीज भी हो सकती हैं। तो अब क्वांटिटेटिव डेटा बहुत आसान है। नॉर्मली हर एक जगह हम क्वांटिटेटिव डेटा को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वो इंसाइट नहीं चाहिए होता है, वो अंतर्दृष्टि नहीं चाहिए होती है जो कि क्वालिटेटिव डेटा में चाहिए होती है। क्वालिटेटिव डेटा में आपको लिखने का, आपको मतलब देखिए क्या चीज़ नोट करना है, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका परसेप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चीज़ नोट करने जा रहे हैं, आपको क्या नोट करना है। और उसके भावनाओं का उतार चढ़ाव भी देखना आपको आना चाहिए कि गांव वाला जब कोई आपको इंटरव्यू दे रहा है वो किस किस फेज से गुजर रहा है। अगर आप में वो इंसाइट नहीं है तो आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और कलेक्ट कर भी लेंगे तो उसको ठीक तरीके से नरेट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। देखिए जैसे स्टोरीज सब लोग पढ़ते हैं लेकिन स्टोरीज लिख नहीं पाते, बहुत सारे लोग स्टोरीज लिख नहीं पाते, क्योंकि स्टोरी लिखने के लिए जो नरेशन क्वालिटी हमको चाहिए होती है वो नहीं होती। हम अनेक यात्राओं पे जाते हैं लेकिन ट्रैवलर्स ब्लॉग नहीं लिख पाते। बहुत सारे लोग ट्रैवलर्स ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन मैं भी बहुत यात्राओं पे जाती हूँ लेकिन मैं नहीं लिख पाती, क्योंकि मुझ में वाली इंसाइट नहीं है कि इस ब्लॉग को कैसे लिखा जाए, क्योंकि वो क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव डेटा बड़ा आसान है। व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट इज़ माय रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट माय रिसर्च क्वेश्चन आस्क फॉर, मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछता है, ये सारी बातें क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में आती हैं। अब क्वांटिटेटिव डेटा में एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये स्ट्रक्चर्ड होती है, संरचित होती है, और क्वालिटेटिव डेटा जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड और असंरचित होता है। कहीं भी गए, हम गांव में गए और जिस हाल में लोग मिले उनका हमने डेटा कलेक्ट किया। वहाँ पे समय निर्धारित नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है कि कब हमें इंटरव्यू लेना है, कैसे लेना है, किस कमरे में लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन क्या हुआ कि बड़ा कंट्रोल्ड है, बड़ा नियंत्रित है कि पीएससी का इंटरव्यू इतने बजे इस हॉल में, इस कमरे में, यहाँ से यहाँ के रोल नंबर का होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो वो मिस हो जाता, क्योंकि वो संरचित है। वहाँ पे जो डेटा कलेक्ट करने बैठे हुए हैं इंटरव्यू लेने वाले, उन्होंने आपको सब चीज़ बता दिया कि आपको इस तरीके से इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है और इस समय आना है, इसके बाद आपको एंटरटेन नहीं किया जाए। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी निर्धारित है। आपको पता होगा कि बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि ये देखता है कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, और वो चुपचाप रहेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन वहाँ पे शेड्यूल तय है। शेड्यूल मतलब किस क्रम में प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी तय है। इसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन कहते हैं कि पहले क्रम पे कौन से प्रश्न रहेंगे, दूसरे क्रम पे कौन सा प्रश्न रहेगा, तीसरे क्रम पे कौन सा प्रश्न रहेगा।
कि पहले से तय होता है, उसको स्किप नहीं करना। तो ये जो डेटा कलेक्शन हुआ वो कंट्रोल्ड है, नियमित है, संरचित है। इसमें डेटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट भी तय और सब चीज़ हम प्री डिटरमिन कर लेते हैं, पहले से तय रख लेते हैं कि हमको ये करना है। और सैम्पलिंग का टेक्निक भी आपको बताऊं। नॉर्मली जब मैं रिसर्च कराती हूँ तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि रैंडम सैम्पलिंग ले लीजिए, क्योंकि बड़ा आसान होता है। हर आदमी लिख देता है कि हमने रैंडम सैम्पलिंग की। रैंडम सैम्पलिंग का मायने क्या हो गया? जो मिल गया उन्हें हमने ले लिया, जो हमें हमारे डेटा कलेक्शन के लिए एग्री हो गए, जो उसमें फिट हो रहे थे, उनको हमने ले लिया। हमने कोई हर एक 5वें को, हर एक 10वें को ऐसा कुछ नहीं किया। हमने हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर डेटा सैंपल को चूज़ कर लिया और उनको ले लिया। तो रैंडम सैम्पलिंग बहुत आसान है और इसलिए लोग ज़्यादातर रैंडम सैम्पलिंग के बारे में लिख देते हैं और बहुत सारे लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का भी यूज़ करते हैं। और सैम्पलिंग के एन नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा जो है उसमें बहुत सारी डेटा गैदरिंग स्ट्रेटेजीज हैं जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो है एक्सपेरिमेंट या क्लिनिकल ट्रायल। कि क्लिनिकल ट्रायल और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि भाई नींद की गोली का स्लीप क्वालिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं ऐसा देखना चाहती हूँ तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, जिसके बारे में अभी मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगी। फिर ऑब्जर्वेशन करना, खुली आंखों से देखना कि आज का वेदर कैसा है, थोड़ा सा ह्यूमिड है, सल्ट्री है, समुद्री जगहों पर जैसा मौसम होता है वैसा आज का रायपुर का मौसम है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। बारिश होगी या नहीं होगी इसके बारे में अगर हम कोई पूर्वानुमान लगाते हैं तो इसको हम ऑब्जर्वेशन करें। और रिकॉर्डिंग करना कि हर इवेंट को, कि मान लीजिए एक लड़की है, वो अभी एक बच्ची है हमारे कॉलेज में जो 3-4 बार एग्ज़ाम नहीं दे पाई और हर बार उसका यही कहना होता है कि एग्ज़ाम में नहीं दे पाई, मुझसे छूट गया, मैं ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाई। तो हम उसको उसके बारे में क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि ये लड़की इसी प्रकार की है। उसके व्यवहार का पूर्वानुमान हमने किस आधार पर लगाया कि उसके बिहेवियर को हमने रिकॉर्ड किया कि वो हमेशा ही ऐसा कहती है और इसलिए वो उसके बारे में एक ऑब्जर्वेशन हमने किया कि आ सकती है कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातों को हम रिकॉर्ड करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे कि एक डॉक्टर के सक्सेस का अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं कि कितने पेशेंट आउटडोर वेट कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा पेशेंट हैं तो बड़ा सक्सेसफुल डॉक्टर है, उसका इलाज निश्चित तौर पर अच्छा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर रिलेवेंट डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा हम डेटा हम MIS से इकट्ठा कर लेते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत सारे प्रश्न के द्वारा हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या हैं? जो कि जिसमें कि आपको उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती। कैसे? कि मैंने पूछा कि 2 लाइनों में जवाब दी, 2 से तीसरी लाइन आप लिखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगा। या हमने कहा कि भाई हिमालय क्या है बताइए, पर्वत, नदी, पठार, तो आप इसमें तीसरा चौथा जवाब नहीं दे सकते। आपको उन्हीं में से एक क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन के उन्हीं आंसर्स में से एक आंसर आपको चुनना है। टेलीफोन इंटरव्यू ले लीजिए, फेस टू फेस बात कर लीजिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, रिकॉर्डिंग किया, MIS से डेटा कलेक्ट किया, सर्वेस किए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन से उत्तर मांगे और उसके साथ साथ हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया और हमने और भी बहुत सारे तरीक़ों से स्ट्रक्चर्ड डेटा इकट्ठा। अब आपकी मर्जी है, जैसे हम आज कॉलेज नहीं गए, बताओ तो कॉलेज में क्या क्या हुआ? ये टेलीफोनिक डेटा कलेक्शन है और ये नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन इसके बारे में नहीं जानते। फिर एक होता है मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड क्या है कि जिसमें हम क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी को भी यूज़ करें, क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी को भी यूज़ करें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें केवल क्वालिटेटिव मेथड काम में नहीं आएगा, इसमें क्वांटिटेटिव भी डेटा हमको इकट्ठा करना होगा ताकि हमारा रिसर्च बहुत ही शक्तिशाली हो जाए और उसके सारे वीकनेसेस कम हो जाए, उसकी वैलिडिटी बढ़ जाए, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाए, उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाए और लोग उस पर क्वेश्चन ना करें, है ना। तो जब हम रिसर्च करने जाएं तो हम ये देखें कि हमारा जो रिसर्च है उसमें हम कब कब क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ करेंगे और कब कब क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसको हमें पहले से ही इनिशिएट करना होगा, पहले से डिज़ाइन करना होगा, पहले से डेवलप करना होगा,
पहले से उसको एक्सपैंड करना होगा कि हस्तक्षेप की ज़रूरत है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारे कम्युनिटी में कोई एक व्यक्ति बहुत हंगामा करता है, हम जिस परिसर में रहते हैं वहाँ एक व्यक्ति न्यूसेंस करता है, तो न्यूसेंस करता है तो हम उसको यूं ही नहीं छोड़ सकते, हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा और कम्युनिटी को कहना पड़ेगा कि आप सब लोग हस्तक्षेप करिए और हस्तक्षेप करके इस व्यक्ति को ठीक करें। तो इसके लिए हमें एक मैथडोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और इंटरवीन करके हमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करना होगा कि ये व्यक्ति ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करता है। तो इसका मूल्यांकन हमें करना होगा, इसके लिए हमें रिसर्च डिज़ाइन बनाना होगा और इसकी पुष्टि करनी होगी। कोरबोरेटिंग बहुत ज़रूरी है कि जो डेटा आपको मिल गया उस डेटा की पुष्टि करें, इसे हम वैलिडिटी कहते हैं कि हमारा, जैसे हमारे साइकोलॉजी में क्वेश्चंस होते हैं, चिंता मापनी, समायोजन मापनी, एडजस्टमेंट स्केल वगैरह, तो उसमें हम एडजस्टमेंट का स्केल लगा रहे हैं लेकिन उससे मेजर हो रहा है एंग्जाइटी, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ये स्केल जो है वैलिड नहीं, ये ठीक नहीं है। हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं इस मापनी में वो ठीक नहीं है, क्योंकि माप तो रहा है एडजस्टमेंट, लेकिन एक्चुअली में वो माप रहा है चिंता, एंग्जाइटी, तो हमको उसको रीचेक करना होगा। अब हम कई तरीके के डेटा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक आप लोग के कोई सवाल हैं तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, किसी ने कुछ पूछना है अब तक के लेक्चर में? Am I audible? Yes ma'am, very audible. Yes ma'am. यहाँ तक कोई सवाल किसी को करना है बच्चों? Ma'am. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बताएं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास डेटा जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? जो अब तक पब्लिश नहीं हुआ है, जो बिल्कुल रिलायबल है, ऑथेंटिक है, वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, यानी उसी लिए कलेक्ट किया गया है जिसके लिए रिसर्च हम करने जा रहे हैं। प्राइमरी डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी ने उसको भी अल्टर नहीं किया, इसलिए प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। और ये बहुत अच्छा होता है कि हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें। कौन कौन से सोर्सेज हैं प्राइमरी डेटा के? कि हम पॉपुलेशन में जाएं, जनसंख्या में जाएं और वहाँ जाके देखें। जैसे एक छोटा सा हम सर्वे करना चाहते हैं कि रायपुर में कौन सा टूथपेस्ट पॉपुलर है। अगर हम इस पर कोई सर्वे करना चाहते हैं तो हमने एक गूगल फॉर्म बनाया और उस गूगल फॉर्म को हमने पूरे लोगों में बांट दिया। उस गूगल फॉर्म को हमने पूरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो डेटा हमारे पास आया वो प्राइमरी डेटा। अब ज़रूरी नहीं है कि 100% डेटा आपका कलेक्ट हो। अगर आप 100 लोगों को गूगल फॉर्म भेजते हैं तो 50% लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, 50% लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी पॉपुलेशन में ऐसे होते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते, सहयोग नहीं करते, और उनको लगता है कि आखिर ये हमारे किस यूज़, हम क्यों इसमें हिस्सा लें। तो हमें बार बार उसको सर्कुलेट करना पड़ता है और इसलिए हमको ये दिक्कत हो सकती है। प्राइमरी डेटा में हमको ये दिक्कत हो सकती है कि हम इसको कलेक्ट करने में कठिनाई महसूस करें। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैडम हमारा रिजल्ट ही ठीक नहीं आता, हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो प्रूफ नहीं हो रही, तो हमारे लिए वो डेटा किस काम का है ना। तो हम ये कहते हैं कि आपकी मैथडोलॉजी सही होना चाहिए, रिसर्च की जो मैथडोलॉजी है वो सही होना चाहिए। आपकी हाइपोथेसिस सत्य हो या असत्य हो इससे मायने नहीं रहते। आपको ये देखना है कि आपका डेटा कलेक्शन टेक्निक जो है वो सही, उसमें आप कोई बायस या किसी तरह का फेक आंसर आपने नहीं कलेक्ट किया है, झूठे उत्तर इकट्ठे नहीं किए हैं, अपने मन से डेटा नहीं बनाया है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन किन किन मेथड से किया जाता है? तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे। क्वेश्चनेयर मेथड, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, केस स्टडीज, डायरीज। केवल यहाँ तक मैं आपको बताऊँ।
और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके लिए एक क्लास काफ़ी नहीं होगी। एक्टिविटी सैम्पलिंग टेक्निक, मेमो मोशन स्टडी, प्रोसेस एनालिसिस, लिंक एनालिसिस, टाइम एंड मोशन स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मैथड, स्टैटिस्टिकल मैथड, इतने सारे मैथड्स हैं। अब हम 2-3 मैथड से ही रिसर्च क्यों करते हैं भगवान जाने। या तो हमें रिसर्च मैथडोलॉजी नहीं मालूम, या हमको डेटा कलेक्शन के तरीके नहीं मालूम, या हम बहुत सारे डेटा कलेक्शन करने के तरीक़ों से डरते हैं, या हमें लगता है कि उससे पता नहीं हमारा रिसर्च हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसी बातें हो सकती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी विधि का हम उपयोग करें उस विधि को हम अच्छे से पढ़ लें, और अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम जिसको भी एक्सपर्ट मानते हैं उससे पूछें कि हम इस तरीके से रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये डेटा कलेक्शन का तरीका ठीक है, अगर नहीं है तो हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सपेरिमेंट मैथड। अब एक्सपेरिमेंट बड़ा जाना माना शब्द, बहुत ही लॉजिकल तरीका है, साइंस में भी यूज़ होता है, हमारे साइकोलॉजी में भी यूज़ होता है एक्सपेरिमेंट। हमारे पास साइकोलॉजी लैब्स होते हैं जहाँ हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है मेडिसिन के क्षेत्र में है, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में है, साइंस के क्षेत्र में है, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, और अनेक क्षेत्रों में ये यूज़ किया है। यहाँ पर हमेशा एक एक्सपेरिमेंटर होता है, एक प्रयोगकर्ता होता है, और वो अलग अलग वेरिएबल्स का इन्फ्लुएंस देखता है। जैसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं, क्या बच्चों को स्कूल में पनिशमेंट देने से उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है या बढ़ जाता है? हम एक बहुत सिंपल सी बात साइकोलॉजी के ले रहे हैं कि क्या पनिशमेंट ज़रूरी है, क्या पनिशमेंट से बच्चों का निष्पादन बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, और एक्सपेरिमेंट कैसे करना होगा कि आपको 2 वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल तो है आपका पनिशमेंट, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये जो आपके कंट्रोल में है, जो प्रयोगकर्ता के, एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में है कि वो बच्चों को दंडित करे या ना। तो आपको बच्चों के 2 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप को आपको पनिशमेंट देना है, एक ग्रुप को आपको पनिशमेंट नहीं देना। तो जिस ग्रुप को आप पनिशमेंट दे रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और जिस ग्रुप को आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं वो कंट्रोल ग्रुप। और यहाँ पे जो वेरिएबल, जो चर, वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी मात्रा को आप परिवर्तित कर सकें, वन विच अंडरगोज वेरिएशन। तो जो चर आपके कंट्रोल में है वो है पनिशमेंट, है ना, और जो चर आपके कंट्रोल में नहीं है वो है उनका परफॉर्मेंस, निष्पादन। वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो पनिशमेंट के कंट्रोल। तो जो चर पनिशमेंट पे निर्भर हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक इसमें कॉज है, दूसरा इफेक्ट है। कॉज कौन सा है? पनिशमेंट कॉज है, और इफेक्ट कौन सा है? परफॉर्मेंस उसका इफेक्ट है। अब आपने सारा एक्सपेरिमेंट किया और आपने देखा कि जो कंट्रोल ग्रुप था, तो जिन बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया वो बेहतर कर रहे हैं, और जिस ग्रुप को पनिशमेंट दिया वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कुंठित हो गए। तो इससे आपने क्या रिजल्ट निकाला कि पनिशमेंट का निष्पादन पर खराब प्रभाव पड़ता है, बच्चों का निष्पादन पुअर हो सकता है ना। तो ये पूरा आपने लैब सेटिंग में किया, इसमें आपने कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल किया, कुछ वेरिएबल्स को एडमिनिस्टर किया। तो इसे हम एक्सपेरिमेंट मेथड कहते हैं। हमेशा एक्सपेरिमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। एक वेरिएबल हमारे कंट्रोल में होता है जिसको हम कॉज कहते हैं। जैसे ज़्यादा गर्मी से पसीना आता है तो गर्मी यहाँ कॉज है, और अगर एसी में बैठ जाइए तो पसीना नहीं आता है, तो वो टेम्परेचर को जो आप रेगुलेट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का रेगुलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसका इफेक्ट क्या है? स्वेटिंग और नॉट स्वेटिंग। इसको आपको सिंपल लेवल में समझना। अब एक्सपेरिमेंट 3 तरीके के होते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट, जिन्हें हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो अभी आपको बताया कि अगर हम देखना चाहते हैं कि एज का लर्निंग पर क्या प्रभाव है, बच्चों की एज का लर्निंग पर क्या प्रभाव होता है, तो आप देखेंगे कि एक क्लास में कई एज के बच्चे होते हैं। कोई फरवरी में पैदा हुआ है, कोई मार्च में पैदा हुआ है, कोई अगस्त में हुआ है, कोई जनवरी में हुआ है, तो सब 1-2 महीने छोटे बड़े हुए। तो यहाँ पे एज को आपको कंट्रोल करना है।
कि एक तो आपने 10 साल का ले लिया बच्चा और एक आपने 11 साल का ले लिया, और आपने देखा कि 10 साल का बच्चा बेहतर लर्निंग कर रहा है कि 11 साल का बच्चा बेहतर लर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल जो है एक ग्रुप होगा और एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होगा जहाँ पे आपने एज को कंट्रोल किया, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जहाँ पे आप एज का इफेक्ट देख। तो जो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब में होते हैं, साइकोलॉजी के लैब में भी होते हैं, और बहुत सारे लैब्स होते हैं जहाँ पर आप देखते हैं, जूलॉजी में देखते हैं, बॉटनी में देखते हैं, जहाँ पे कुछ परिस्थितियों को कि एक पौधे को आपने पानी दिया और एक पौधे को आपने पानी और लाइट दोनों दिया और एक पौधे को आपने कुछ नहीं दिया, तो तीनों का जो इफेक्ट देखा आपने वो आपका लैब एक्सपेरिमेंट होता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई कहीं पे अर्थक्वेक आया, कहीं पे बाढ़ आई, तो वहाँ जाकर स्टडी करना, फील्ड में जाकर रियल लाइफ सिचुएशन में जाकर देखा कि जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, उत्तराखंड में जो जलजला हुआ था वहाँ पे बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडी हुई मेंटल हेल्थ को लेकर, तो वहाँ जाके हमने देखा कि और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर रियल लाइफ सेटिंग। जैसे आज बिजली गोल हो गया तो इससे मेरा लेक्चर थोड़ा सा प्रभावित हुआ क्योंकि मुझे पसीना आ रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रानियस वेरिएबल हो गया, एक मध्यवर्ती चर हो गया, एक ऐसा चर जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे नहीं मालूम था कि शट डाउन हो जाए। तो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो रियल लाइफ सेटिंग में हमारे परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें जाकर वहाँ पे देखना जहाँ पे घटना घटी है, तो उसको हम फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। इसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी बहुत है, इसकी सत्यता बहुत होती है क्योंकि आप उसी जगह पर जाकर स्टडी करें, इसलिए इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं और साथ साथ इसमें जो डेटा कलेक्ट होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, शुद्ध होता है, हाउएवर ये खर्चीला होता है। फिर नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स जो प्राकृतिक तौर पे किए जाते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस में किए जाते हैं, जहाँ के पार्टिसिपेंट्स होते हैं रियल सेटिंग में होते हैं, नेचुरल सेटिंग में होते हैं, जहाँ पर हमने कोई लैब जैसी सेटिंग नहीं बनाई। इसका स्ट्रेंथ क्या है कि एक व्यक्ति बड़ा अच्छे बिहेवियर का हमें दिख रहा है, लेकिन घर में हमने जाके देखा कि उसका बिहेवियर बहुत ही खराब है ना। मैरी नाम की एक लड़की है, अगर हम कोई पर्सनालिटी थ्योरी की बात करें यहाँ पर, तो मैरी को टीचर ने स्वच्छता में 100 मार्क्स दिए और टीचर ने कहा कि मैरी मैं तुम्हारे घर आती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि इतनी स्वच्छ लड़की घर में कैसी रहती है। और जब वो मैरी के घर गई तो वो देख के चौंक गई कि उसका घर इतना गंदा था, कहीं मोजा, कहीं जूता, कहीं बस्ता, कहीं पानी की बोतल, पूरी तरफ गंदगी उसने फैला दी। तो उन्होंने सोचा कि स्कूल में स्वच्छता और बात है और घर में स्वच्छता और। उन्होंने तुरंत मन में ये सोचा कि अगली बार स्वच्छता में नंबर देने से पहले मैं सोचूंगी कि नेचुरल तौर पे भी मुझे जाकर देखना है कि बच्चों का बिहेवियर नेचुरल सेटिंग में कैसे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम दिखाते हैं एक्चुअली वही है या नहीं, तो इसकी भी इकोलॉजिकल वैलिडिटी बहुत है। अभी हम आते हैं सर्वे पर। सर्वे जो है मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, मार्केटिंग हो, मैनेजमेंट हो, सोशल साइंसेस हो, कहीं भी हो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली मैथडोलॉजी है। यहाँ पर हम थॉट्स को एसेस कर सकते हैं, ओपिनियंस कलेक्ट कर सकते हैं, फीलिंग्स को जान सकते हैं, और कई बार जो गूगल फॉर्म्स होते हैं, इन दिनों तो हम गूगल फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, कई दिनों में जो गूगल फॉर्म्स होते हैं वो गूगल फॉर्म जो हैं वो आपसे ओपन क्वेश्चन भी करते हैं। इसके अलावा और भी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग डायरेक्टर्स, ये सब सर्वे मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं। और सर्वे के लिए हमको सैंपल का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो सर्वे हमने किया, जैसे हमने कहा कि रायपुर की जनता में हमने देखा कि वो लोग कोलगेट टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे, तो हमने इसको जनरलाइज कर लिया कि सारा रायपुर कोलगेट यूज़ करता है, क्योंकि रायपुर के हमने 25 कॉलोनियों का स्टडी किया कि कौन कौन कोलगेट यूज़ करता है। तो हमने ये देखा कि 25 कॉलोनी
कोलगेट यूज़ करती है और रायपुर में कुल 30 कॉलोनी है, तो हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि सारा का सारा रायपुर कोलगेट यूज़ करता है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलोनीज में कोलगेट के लिए प्रेफरेंस आया है ना। तो सैंपल सिलेक्शन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सैंपल आप यूज़ कर रहे हैं, वो सैंपल आपने किस मेथडोलॉजी से यूज़ किया। अब सर्वे क्या है? सर्वे में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो उसकी भी विशेषताओं का पता चलता है, क्यों किस प्रकार की जनसंख्या है, हमारा सैंपल कैसा प्रतिनिधित्व करता है। सर्वे जो है सेल्फ रिपोर्टेड आंसर्स होते हैं, यानी मैं ही अपने बारे में बता रहा हूँ, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में मैं बता। ये एक ऑब्जर्व बिहेवियर है कि मैंने 50 क्वेश्चन आपको भेजे और आपने उनको भर के भेज दिया, तो ये मेरी सेल्फ रेटिंग। बार बार सर्वे हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की मांग बदलती रहती है ना। तो बार बार सर्वे करने को, हम फ्रिक्वेंट सर्वे जो करते हैं उससे हमें पता चलता है कि मार्केट के ट्रेंड में लोगों के बिहेवियर में क्या चेंज आया। सर्वे इलेक्ट्रॉनिकली किए जा सकते हैं, टेलीफोन से किए जाते हैं, मेल से किए जा सकते हैं, फेस टू फेस किए जा सकते हैं, और गूगल फॉर्म्स के द्वारा भी किए जा सकते हैं, और कई बार हम नॉर्मली आमने सामने बैठकर भी इंटरव्यू ले सकते हैं। ये डेटा गैदरिंग का सबसे आसान तरीका है। अब सर्वे में क्या क्या इश्यूज होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा सर्वे हमारा सही है। सर्वे में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? सैम्पलिंग इश्यूज, कि आपने सैंपल ठीक लिया है। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा रिसर्च एरिया पर्सनालिटी है, तो मैं पर्सनालिटी पे काम करती हूँ, तो मुझे पर्सनालिटी को पहले आइडेंटिफाई करना है। अब अगर मैंने गलत मैथडोलॉजी को यूज़ कर लिया कि मैंने पहले बिना पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किए सर्वे क्वेश्चन दे दिया, तो मैं ये कैसे बता सकूंगी कि ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लिए है, कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लिए है, कि न्यूरोटिक पर्सनालिटी के लिए है। मैं जो कहना चाह रही हूँ किस पर्सनालिटी के लिए, ये मैं नहीं बता पाऊँ। और इसके साथ साथ कंटेंट क्या है, आपके क्वेश्चंस क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 10 फॉर्म देख लेते हैं और उसको देख के एक फॉर्म बना लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें जानवीन तरीके से सर्वे क्वेश्चन बनाना चाहिए। बायस्ड इशू होते कि अपने अपने लोगों को हमने सर्वे फॉर्म भेज दिया जो हमको ठीक ठीक जवाब देंगे, और बाकी लोगों को हमने छोड़ दी, हमारी सैम्पलिंग खराब हो गई और हम पूर्वाग्रहित तरीके से सर्वे कर रहे हैं, वो सही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो सकते हैं, इसमें प्रशासनिक तौर पे कि हमने कैसे इसको एडमिनिस्टर किया, ये वाले इश्यूज हो सकते हैं। फिजिबिलिटी, कि इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, इस पर भी इश्यूज हो सकते हैं, तो इन सब का हमको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपके कोई सवाल हैं? कुछ पूछना है आप लोग को, क्योंकि मैं आप लोग को नहीं देख पा रही हूँ। मैम हम लोग जो प्राइमरी डेटा जो यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग एक ही सिर्फ प्राइमरी और अपना सेकेंडरी नाम डेटा बता पे दीजिए बेटे। माखनलाल। अच्छा, आप रिसर्च स्कॉलर हैं? यस मैडम। हाँ बताइए। जी मैडम, हम लोग जैसे प्राइमरी डेटा यूज़ करते हैं हाँ, और सेकेंडरी डेटा, तो सिर्फ हम लोग फोकस सिर्फ सेकेंडरी डेटा पे कर सकते हैं क्या? सेकेंडरी डेटा पे कर सकते हैं, पर एज ए रिसर्चर आपको प्राइमरी डेटा हमेशा कलेक्ट करना है। जैसे मैडम हमारा जो दूसरों के डेटा पर आप काम करेंगे तो वो वैसा अच्छा नहीं होता जैसा कि आपका अपना डेटा हो। ये मैडम हमारा क्या, मेरा जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मतलब है, भूगोल है। तो आप तो सेकेंडरी डेटा पे ही काम करेंगे, यस मैडम, यस। है ना। पर कोशिश करिए कि आप कुछ तो प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें सेकेंडरी डेटा पे काम करना हो। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो अब हम आते हैं केस स्टडीज। गुड आफ्टरनून हाँ, तो पूछना है मैम। बेटे? मैम मैं इंग्लिश में कर रही हूँ पीएचडी। तो हाँ। आप जितने भी एग्जांपल्स बता रहे हैं ना, मुझे एग्जांपल्स तो बहुत क्लियर हो रहा है, बट मैं उसे अपने सब्जेक्ट से समहाउ रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तो फिर भी इंग्लिश जो क्लियर है हो रहा है। ह्यूमैनिटीज में आता है ना बेटा, हाँ जी मैम। और आप उसमें बहुधा क्वालिटेटिव काम करते हैं। इस लेक्चर के पूरा होने के बाद आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिएगा, और मैम। आपसे मतलब आपके से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व कर दूँगी। क्योंकि इंग्लिश you, में हम thank you. क्वांटिटेटिव डेटा नहीं कर सकते। जैसे हम किसी नॉवेल के साइको एनालिसिस यदि कर रहे हैं तो पूरा क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं चलेगा, वही थोड़ा मुझे डाउट है। नहीं ठीक है है। मैम।
क्योंकि उसमें आपसे मैं क्वेश्चनियर्स वगैरह हम यूज नहीं करते हैं। मीन्स ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा क्वालिटेटिव, isn't it? हाँ, Means, वो आपका पूरा क्वालिटेटिव है, क्योंकि आप नॉवेल का री एनालिसिस कर रहे हैं या उस पर कोई रिव्यू कर रहे हैं या अपने थॉट्स दे रहे हैं, है ना, तो वो आपके इंसाइट पर निर्भर करता है कि आप उसका आपका परसेप्शन क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उस नॉवेल को आपने कितनी बार पढ़ा है, उस नॉवेल के कैरेक्टर्स को आप कितना जानते हैं, उस नॉवेल का आइटम एनालिसिस आपने कैसे किया है। ये सारी बातें जो हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में आ जाती हैं। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, हम इसमें ये सारी मैथडोलॉजी को यूज़ नहीं करते, बट बेसिकली दीज आर रिसर्च मैथडोलॉजी। आप इंग्लिश में केस स्टडी कर सकते हैं, किसी नॉवेल के कैरेक्टर को लेकर उस पर एक केस अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बेटे? ठीक है मैम। हाँ, तो हम केस स्टडी पर आते हैं। केस स्टडी क्या है? एक सिंगल व्यक्ति की, एक व्यक्ति की, एक संस्था की, एक समूह की या एक समुदाय की का पूरा अध्ययन, इन डेप्थ अध्ययन। अब इसमें हम ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू का सहारा लें। क्लिनिकल मेडिसिन जो होते हैं, मतलब जब हम किसी व्यक्ति को, मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि हम एंटी डिप्रेसेंट किसी को दे रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, और इसके लिए हमको 2 ग्रुप्स बनाने हैं। तो एक ग्रुप को हम प्लेसबो इफ़ेक्ट यानी उसको नॉर्मल शुगर का टैबलेट देंगे और एक ग्रुप को हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे, और देखेंगे कि हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें जो हमारी केस स्टडी बनी है, तो उस व्यक्ति का जो केस हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे कि उसकी पर्सनल हिस्ट्री की, किस उम्र में उसने बोलना सीखा, किस उम्र में स्कूल गया, किस तरीके से बातचीत करता है, उसके फैमिली का इंटरव्यू लिया, उसके फ्रेंड्स का इंटरव्यू लिया, और उसके सारे स्कूल के लोगों का इंटरव्यू लिया, उसके टीचर्स का इंटरव्यू लिया। तो ये सारा जो केस हिस्ट्री होता है वो केस स्टडी है। ये आइडियोग्राफिक होता है। आइडियोग्राफिक का मतलब है कि एक ही व्यक्ति को लंबे समय तक स्टडी करना, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। उसको आप बीच में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो उसको डिप्रेशन की बीमारी है यदि उसे, तो हम उसको टाइम टू टाइम स्टडी कर रहे हैं और लंबवत उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसको साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि एंटी डिप्रेसेंट देने से उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है कि उसको शुगर टैबलेट प्लेसबो जिसे हम कहते हैं वो देने से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो उसको हमने 10 वर्षों तक स्टडी किया। तो ऐसी स्टडी को हम केस स्टडी कहते हैं, और केस स्टडी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और केस स्टडी क्वालिटेटिव स्टडीज़ में होता है। इसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मायने है कुछ भी पूछ लो, कैसे भी पूछ लो। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, समूह के अंदर जाके उसका अवलोकन करना, डायरीज देखना, जो व्हाट्सएप मैसेजेस वो कर रहा है उसको स्टडी करना, उसके कंटेंट को एनालाइज करना, उसके पर्सनल नोट्स को देखना, उसके लेटर्स को देखना, उसको फोटोग्राफ्स को देखना, है ना। आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी की किताब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मर्लिन मोनरो की एक चित्र है सुसाइड के एक दिन पहले। तो उसका जो गेज है, उसकी जो आंखें हैं, उसका जो एक्सप्रेशन है, उससे आप देख पा रहे हैं कि क्या उसमें डिप्रेशन या सुसाइड का कोई प्री इंडिकेशन दिखाई दे। तो उसमें केस नोट्स बना, क्लिनिकल नोट्स बना, अप्रेजल रिपोर्ट्स बना। हमारा प्रिंसिपल कैसे हमारा अप्रेजल रिपोर्ट बनाता है साल भर का, कि इसने ठीक ठीक काम किया या नहीं किया, इसका पूरा साल भर रवैया कॉलेज में कैसा था, ये सारी बातें उसमें आती हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है केस स्टडी में, तो सीधे जाके देख लीजिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि एक व्यक्ति को सीधे सीधे देख लीजिए कि उसने क्या पहना है, उसका अटायर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कब नहाया है, बाल बनाए हैं नहीं बनाए हैं, कितने बटन शर्ट में खुले हैं, कितने लगाए हैं, उसके नाखून कटे हैं या नहीं, ये सारा चीज़ जब आप देखते हैं ना, एज अ साइकोलॉजिस्ट जो आप देखते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू करना, बातचीत करना, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, है ना, कि भाई न्यूज़पेपर में उसके बारे में कोई आर्टिकल है क्या, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है क्या। जैसे 5 बार मुझे नोटिस मिल गई मान लीजिए कॉलेज में और मेरी सर्विस बुक में लग गई, तो बात साफ है कि मेरा रिकॉर्ड धीरे धीरे ख़राब हो, है ना। और जब मेरे ऊपर आप केस स्टडी करने आएंगे तो पहला तो इम्प्रेशन यही होगा कि इनकी जो पर्सनल फाइल है उसमें बहुत सारे कारण बताओ नोटिस लगे। आर्काइव रिकॉर्ड्स को देखना, सेंसस रिकॉर्ड्स, सर्वे रिकॉर्ड्स, नेम लिस्ट, ये सबको देख लीजिए। फिजिकल आर्टिफैक्ट्स देखना,
कि जब मैं आपके सामने आई तो मैंने कैसी साड़ी पहनी थी, मैंने कैसी पोशाक पहनी थी, कैसी चूड़ियाँ पहनी थी, किस तरीके से का पेन मैंने रखा था, घड़ी मेरी कैसी थी, मेरे बातचीत का लहजा कैसा था, है ना। मोहनजोदड़ो का हम देखते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से फिर उसके साथ रहकर उसको ऑब्जर्वेशन करना, जिसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये सारी चीज़ों को। फिर एक अगला मेथड है क्वेश्चनियर मेथड। ये एक प्रश्नावली हम तैयार कर लें और डेटा कलेक्ट। अब प्रश्नावलियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, ओपन एंडेड होती हैं, क्लोज एंडेड होती हैं। ओपन एंडेड वो है जिसमें आपको उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है, क्लोज एंडेड वो है जिसमें आपको उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं। कहाँ कहाँ से आप क्वेश्चनियर कंडक्ट कर सकते हैं? टेलीफोन से, मेल से, पब्लिक एरिया में, इंस्टीट्यूट में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। बहुत सारे क्वेश्चनियर सर्कुलेट हुए कोविड के दौरान, जो कि मेंटल हेल्थ सर्वे थे, डिप्रेशन के संबंध में सर्वे थे, एकाकीपन को लेकर सर्वे थे, सोशल आइसोलेशन को किए गए सर्वे थे। बहुत सारे सर्वे हम लोगों ने किए, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, है ना। तो सर्वे क्वेश्चनियर के रूप में इसको दिया जाता है और पर्सनली आप भी इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ना ज़्यादा सरल। उसमें किसी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन, धर्म, जाति आदि के बारे में सवाल नहीं होने चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, मानकीकृत, एक्सप्लोरेटरी हो, खोजक हो, वो सवाल हों जिनके हल आपको चाहिए। क्वेश्चन का सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ। पहले स्क्रीनिंग क्वेश्चंस होंगे, फिर वार्म अप क्वेश्चंस होंगे, फिर ट्रांजिशन क्वेश्चंस होंगे, फिर स्किप क्वेश्चंस होंगे, फिर चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, फिर क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस। इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करें। अब क्वेश्चन के कई प्रकार हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन आपने जान लिया। डाइकोटोमस जिसमें दो ही पॉसिबल आंसर्स हैं, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग जानते हैं। स्केलिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि जिसमें हमने मान लीजिए मरीजों से कहा कि 1 से 10 के बीच आप इस हॉस्पिटल को रेट करिए कि क्या इसने आपके गोल्स को सेटिस्फाई किया, क्या आपका इलाज अच्छा हुआ, क्या आपका तनाव हल्का हुआ, क्या आपके सेफ्टी का ध्यान रखा गया। ये सबको 1 से 10 के बीच में आप रैंक कीजिए, तो ये होगा स्केलिंग क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं पिक्टोरियल क्वेश्चन, जो कि बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सारी प्रश्नावलियाँ जो होती हैं वो 4 तरह के स्केल्स पर निर्भर करती हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल क्या है कि जो आपका जेंडर क्या है। हाँ बेटे बोलो। डाइकोटोमस क्या होता है मैम? डाइकोटोमस यानी जिसमें 2 ही तरह के उत्तर, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, है ना, सहमत असहमत, ऐसे जिसके 2 आंसर्स हों वो डाइकोटोमस। ठीक है। नॉमिनल स्केल्स क्या है? जैसे आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, आपका पॉलिटिकल प्रेफरेंस क्या है, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है ना? जब ऐसा डेटा आप इकट्ठा करते हैं उसको हम नॉमिनल स्केल। बस मेरे को नहीं आ गया, ठीक है, बस बता दो। हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहे? नो मैम, नो मैम। नॉमिनल क्वेश्चन जो जेंडर, पॉलिटिकल प्रेफरेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मेरा मतलब मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, मेरा जेंडर क्या है, मेरी लोकेलिटी क्या है, मेरा शहर क्या है, ये सारी चीज़ें नॉमिनल स्केल के अंतर्गत आती हैं। ऑर्डिनल स्केल का मतलब क्या है कि भाई वेरी सेटिस्फाइड ऑर्डर देना है, एक स्टेटस देना है कि मैं शैम्पू से बहुत संतोष रखता हूँ, कम संतोष रखता हूँ, असंतोष रखता हूँ, बिल्कुल असंतोष रखता हूँ, या मैं इसके बारे में न्यूट्रल हूँ, सहमत हूँ, बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, नहीं जानता, असहमत हूँ, बहुत ज़्यादा असहमत। तो इसे हम एक ऑर्डर में देते हैं, है ना, तो उसे हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। मैं मूवी जाना पसंद करूँगा कि किताब पढ़ना पसंद करूँगा कि गप मारना पसंद करूँगा, तो 1 2 3 का इसको आपने ऑर्डर दे दिया, तो ये ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल स्केल क्या है? टेम्परेचर के बीच में जैसे अंतर है कि 80 डिग्री और 50 डिग्री के बीच 30 डिग्री का अंतर है,
और यही अंतर 70 डिग्री और 40 डिग्री के बीच है ना। तो जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं वो इंटरवल स्केल्स हैं। अगर मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा तो मुझे बुखार आ जाएगा, अगर मेरा टेम्परेचर 97.5 है तो वो नॉर्मल है। रेशियो स्केल्स क्या हैं कि मेरी हाइट कितनी है, 5 फीट है, 5 फीट 1 इंच है, 5 फीट 1 इंच से 5 फीट 5 इंच के बीच है, 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच है, या 6 फीट से ज़्यादा। तो इसको हम रेशियो स्केल कहते हैं, 1:2, 2:3 ऐसा। जैसे आजकल नेट एक सवाल पूछती है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, तो हम कहते हैं 1:44, हर 44 बच्चों के ऊपर एक टीचर, है ना। तो ये रेशियो स्केल कहलाता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन का सीक्वेंस कैसा हो, इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। जब आप क्वेश्चनेयर बना रहे हैं तो क्वेश्चन का सीक्वेंस कैसा हो, तो पहले कौन से क्वेश्चन हो, स्क्रीन्स वाले, फिर वार्म अप क्वेश्चन, फिर ट्रांजिशन क्वेश्चन, फिर स्किप क्वेश्चन हो, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, फिर चेंजिंग फॉर्मूला क्वेश्चन हो। अब ये क्या है देखिए, स्क्रीन्स वाले क्या हैं कि भाई अगर मुझे हाई इनकम ग्रुप पे काम करना है तो मैं पहले पूछूंगी कि आपका इनकम कितना है। तो उसने कहा कि मैं साल में 1 लाख कमाता हूँ, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि वो मेरे इनकम ग्रुप में नहीं। तो मैं उसको स्क्रीन कर, जैसे प्री पीएमटी है ना, यूपीएससी का स्क्रीनिंग होता है, पीएससी का स्क्रीनिंग होता है कि जितना जो ऐसा स्टफ है जो पीएससी के लायक नहीं उसको हमने पहले ही छाट कर अलग कर, स्क्रीनिंग टेस्ट उसको कह दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस कि हमारा जो है वो काम का है कि नहीं, ये वाला सैंपल हमारे काम का है कि नहीं, उसको हमने स्क्रीन कर लिया। फिर वार्म अप यानी सिंपल क्वेश्चन, अच्छा आप कैसी हैं, आप कहाँ से आई हैं, आपने सुबह क्या ब्रेकफास्ट किया। इससे क्या होता है कि रैपो बिल्ड, इंटरव्यू देने वाले और इंटरव्यू लेने वाले के बीच रैपो बिल्ड होता है, और देने वाला जो है बहुत आसानी से उत्तर देता है। फिर ट्रांजिशन क्वेश्चन, ट्रांजिशन मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछना जिससे टॉपिक फ्लो हो। ऐसे आपने धड़ाधड़ ऐसे प्रश्न उनसे कर दिए जिसको वो बता ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा कि क्वेश्चनेयर का फ्लो रुक जाए, इंटरव्यू बीच में रुक जाएगा, वो नर्वस हो जाएगा, कहेगा कि भाई मुझसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है सर, मैं बाहर जाऊँ, मैं इस सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन को मिक्स कर स्किप करना कि अगर हाँ है तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाइए, और नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 5 में, उसको स्किप क्वेश्चन कहते हैं। फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट यानी जो कट ऑफ को निर्धारित करता है। देखिए सामान्य बच्चे जो होते हैं सब सवालों का जवाब दे लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि एग्ज़ाम के कट ऑफ को निर्धारित करते हैं, वो होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। उनको जो आंसर करता है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, और उनको जो आंसर नहीं करता है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करता। फिर है क्लासिफिकेशन क्वेश्चन कि मैं अपर इनकम ग्रुप में हूँ, लोअर इनकम ग्रुप में हूँ, मेल हूँ कि फीमेल हूँ, अर्बन एरिया के हूँ कि रूरल एरिया के हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं। और जो क्वेश्चनेयर का जो बेसिक रूल है वो ये है कि क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो सभी जनसंख्या के समझ में आए। ऐसे स्टेटमेंट्स हों जो किसी को आहत ना करें, कि ऐसे स्टेटमेंट ना हो कि हर एक व्यक्ति उसका अलग उत्तर दे, सबको एक जैसा समझ में आए, है ना। इस तरीके के प्रश्न आपके होने चाहिए जो किसी कास्ट, क्रीड या कम्युनिटी के बारे में नहीं हो। कि हमको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है एक्यूरेट हो, संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो। ABC होना चाहिए, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। और इसके बाद क्वेश्चनेयर जो है उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट्स उसमें नहीं होना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जिससे आप उत्तर लेने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से आपको राय नहीं बनाना कि ये लोग यही उत्तर देंगे। देखिए कई बार चुनाव में रुझान कुछ और आता है और जीत कोई और जाता है ना, तो आपको अजम्पशन बना के रेस्पोंडेंट के बारे में क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। उनके एजुकेशनल लेवल के आधार पर आपको क्वेश्चन तैयार, सरल, सहज, क्लियर भाषा में
क्वेश्चन तैयार करना है, स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान रखना। जॉब ब्रेकिंग वर्ड्स यानी ऐसे शब्दों को हमने डाल दिया क्वेश्चनेयर में जो कि हमको खुद समझ में नहीं आया, जिसमें ना ग्रामर का ध्यान रखा ना पंक्चुएशन का ध्यान रखा, ऐसे प्रश्न हमको तैयार नहीं करना चाहिए। और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि सरल और सहज भाषा में आसानी से समझ आने वाले प्रश्नावली होने चाहिए। फिर क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चंस हैं वो सेंसिटिव नहीं होने, संवेदनशील नहीं होने चाहिए। देखिए कैटल कहते हैं कि 10 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सवाल नहीं करना, जिसके बारे में हम बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं। ये अभी चूँकि टॉपिक दूसरा है, किसी और दिन मैं बात करूँगी तो वो सारी बातें आपको बताऊँगी। तो आपकी इनकम क्या है, आपका स्पाउस क्या है, आपके कितने ब्रेकअप हुए हैं, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ों पे आपको सवाल नहीं करना है, क्योंकि इससे आदमी तमतमा सकता है, नाराज़ हो सकता है और आपके प्रश्नावली को फाड़ कर फेंक सकता है। तो हमको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। डबल बैरल्ड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। डबल बैरल्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक साथ 2 क्वेश्चन आप कहें, जैसे डू यू थिंक दैट स्टूडेंट शुड हैव मोर क्लासेस अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर। यहाँ पे मैं 2 सवाल एक साथ कर रही हूँ कि हिस्ट्री के बारे में पूछ रही हूँ, कल्चर के बारे में भी पूछ रही हूँ, इसका वो क्या जवाब देगी। तो हमको ऐसे डबल बैरल्ड क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए, हमको एक एक सवाल एक एक करके पूछना चाहिए। फिर हम आते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन के बारे में पीछे हमने चर्चा की, इसे FGD कहते हैं और इंग्लिश वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर हम किसी नॉवेल के बारे में राय इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम FGD का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक फोकस ग्रुप डिस्कशन में 6 से 12 लोग हो सकते हैं। उनको आप एजेंडा बता दीजिए कि आज मैं शिवानी के 14 फेरे नॉवेल का विश्लेषण करूँगा, आप कृपया इसको पढ़ कर आइए और इसके बारे में बताएं। जिसको हम बुक रिव्यू कहते हैं, डिस्कशन कहते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और इसमें आप मॉडरेटर की भूमिका में रहेंगे, फैसिलिटेटर की भूमिका में रहेंगे। आपको क्या करना है, डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, फैसिलिटेट करना है। हाँ, आप भी बताइए, आप भी बताइए, आप भी बताइए। किसी को इनहिबिट नहीं करना है, किसी को रोकना नहीं, उसके विचारों को प्रकट करने देना है ना। पार्टिसिपेंट्स को आपको स्टिमुलेट करना है, उनको कहना है, मोटिवेट करना है, हाँ बोलिए, अंदर जो छुपे विचार हैं उनको बताइए। गिव योर ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड रीजंस फॉर द बिहेवियर। इस व्यवहार का क्या कारण था, हाउ एंड वाई को डिस्कस करता है। इसको डिस्कस करता है हाउ एंड वाई, और इसीलिए ये क्वालिटेटिव मैथ है। फोकस ग्रुप डिस्कशन में जो डेटा कलेक्ट होते हैं वो डेटा जो होते हैं स्पेसिफिक टॉपिक पे होते हैं और इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। मार्टिन एंड फिस्के ने इस पे काम किया है। इन्होंने कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को जानने के लिए इस ग्रुप का, इस मेथडोलॉजी का यूज़ किया कि किसी प्रोडक्ट के लिए हमारा सेटिस्फैक्शन क्या है और इसमें हम और क्या चाहते हैं। आजकल आप देखिए मार्केट सर्वे होते हैं बहुत सारे, और जो कि फोकस ग्रुप डिस्कशन ऑनलाइन किए जाते हैं उसके आधार पर होते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन में हम किन किन बातों का ध्यान रखें कि कौन से एज के हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी आयु क्या है, उनका लिंग क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और हमारा जो मॉडरेटर है जो पूरे डिस्कशन को कंडक्ट कर रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए, गंवार नहीं होना चाहिए, लेमेन नहीं होना चाहिए, ये फैसिलिटेटर होना चाहिए। जैसे कई बार मैंने देखा है, मैं काउंसलिंग के लिए बहुत सारी जगह पर होती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि एक बच्चा जैसे अभी आया, उसने कहा कि मेरे पिताजी मुझे म्यूज़िक नहीं सीखने दे। तो मैंने उनके पिताजी से पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको फैसिलिटेट क्यों नहीं करते हैं। वो बोले कि क्या करेंगे, फालतू म्यूज़िक सीख। उन्होंने एक ऐसे टका सा मुझे जवाब दिया, तो मुझे लगा कि बच्चे से ज़्यादा पेरेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत है, माता पिता को काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चे की तो जो प्रॉब्लम है वो है ही है, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम किस लिए है, क्योंकि हम बच्चों को फैसिलिटेट नहीं करते, हम उनको वही करवाना चाहते हैं जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। तो मॉडरेटर और फैसिलिटेटर का मायने क्या है, अभी प्रोफेसर की भूमिका क्या होनी चाहिए, फैसिलिटेट करने की होनी कि आप उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाएं। इस तरीके से मैं आपको प्रमोट करूं, आपको मोटिवेट करूं, है ना, कि आप
आप लोगों से भी मैं कह रही हूँ कि सवाल पूछ लीजिए, लेकिन आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। तो अंत में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आप फैसिलिटेट हुए कि नहीं, ये हमें कैसे पता चले। फिर जो मॉडरेटर है, जो फोकस ग्रुप डिस्कशन को कंडक्ट कर रहा है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि समूह के सदस्यों की फीलिंग्स क्या है, उनके परसेप्शंस क्या हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं। इसको जज करना आना चाहिए। अ गुड ह्यूमन बीइंग, उसका जो ग्रुप स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको पूरे ग्रुप को संभालना आना चाहिए, उसको सुनना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए, उसको इतना स्किलफुल होना चाहिए कि वो किसी को बस अब चुप हो जाओ ऐसे नहीं कहना, उसको फैसिलिटेट करना है। हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यू, ऐसा हमें कहना है, तब हम किसी रिजल्ट पर नहीं। अब जो FGD है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, वो नए रिसर्च एरियाज को डील करता है। इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि जो एक ग्रुप है जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, उसके आइडियाज़ क्या है, और वो एक टॉपिक को एक्सप्लोर करता है, एक टॉपिक को एक्सप्लोर करता है। जैसे मैंने बीड़ी बनाने वालों पे काम किया, बीड़ी बनाने वाली जो महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं पे जब मैं FGD कर रही थी तो मैंने देखा कि उन्होंने बीड़ी बनाने को छोड़कर और भी बहुत सारी बातें मुझसे, तो मैंने देखा कि उनका जो परसेप्शन है वो सिर्फ बीड़ी बनाने को लेकर नहीं है, वो और भी चीज़ों से, और भी मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जिसमें और भी दिक्कतें हैं। और मुझे एक नया इंसाइट हुआ कि मुझे इस एरिया में भी रिसर्च करना चाहिए, है ना। और साथ साथ जो मेरा ऑब्जर्वेशनल टेक्निक था, जो मेरा अवलोकन करने का तरीका था, जो मेरी डिसीजन मेकिंग थी, जो मेरा एटीट्यूड था, वो भी बदला। बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर हम क्वेश्चनर बना नहीं सकते। जैसे मैरिटल सेटिस्फेक्शन पे यदि आप काम कर रहे हैं, तो वैवाहिक संतोष पर यदि आप काम कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चनर दे देंगे तो कौन भर के भेजेगा, कोई नहीं भेजेगा, क्योंकि बड़े पर्सनल क्वेश्चन है। तो हम उस पर FGD कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो सेंसिटिव टॉपिक है। बिगड़े बच्चों को लेकर हम FGD कर सकते हैं, पेरेंट्स का इंटरव्यू ले सकते हैं, बच्चों का इंटरव्यू ले सकते हैं, और प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम सर्वेज और इंटरव्यू को बेहतर करने के लिए FGD कर सकते हैं, और हमारे रिसर्च फाइंडिंग्स को बेहतर करने के लिए FGD कर सकते हैं। ओपिनियंस और प्राप्त करने हैं तो उसके लिए हम फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, और विचार इकट्ठा कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी गांव में जाकर क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको, जब आप फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो आपको बहुत सारी लोकल भाषा का पता चलता है, लोकल लैंग्वेज का, लोकल डायलेक्ट का पता चलता है, बहुत सारी लोकल फिनोमिनन का पता चलता है जो आपको नहीं मालूम। तो इसलिए फोकस ग्रुप डिस्कशन बहुत ही एक उचित टेक्निक है। और मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट 3 बार रिजेक्ट हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं FGD फोकस ग्रुप डिस्कशन करूँ। तो मैं जब भी वहाँ अपना प्रेजेंटेशन देने जाती थी, तो वहाँ पर जो चेयरपर्सन होते थे वो कहते थे कि जब तक आप इसमें फोकस ग्रुप डिस्कशन आप नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और इसलिए हम आपके प्रोजेक्ट को पास नहीं कर सकते। और यकीन मानिए कि जब मैंने फोकस ग्रुप डिस्कशन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि नॉर्मल डेटा कलेक्शन मेथडोलॉजी में नहीं होती हैं, जो कि यहाँ होती। फिर अगला मेथड है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या है? इंटरव्यू, जैसा कि नाम से पता चलता है, इनर व्यू, एक इंसान का जो आंतरिक पहलू है हम इसके द्वारा जानते हैं। इसमें हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि दो लोग जो हैं, एक इंटरव्यू दे रहा है और एक इंटरव्यू ले रहा है ना। तो देने वाला और लेने वाला के बीच जो रेपो होता है वो कैसा, हम क्या सवाल कर रहे हैं और वो हमें क्या जवाब दे। इंटरव्यू लेने का एक खास फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं, एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं, और भी रिएक्शंस को देख सकते हैं। और भी बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं आमने सामने बैठ कर उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक साइकोलॉजिस्ट होता है हर इंटरव्यू में, तो ये देखता है कि आपका जो अपीयरेंस है वो कैसा है, आपकी पर्सनालिटी है वो कैसी है, वेदर यू विल फिट इन द जॉब और नॉट।
इस जॉब में आप फिट होंगे या नहीं होंगे। और वो हमेशा चुपचाप रहता है, वो आपसे सवाल नहीं करता, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके आपके बारे में बताता है ना। कि जैसे आप आए और आपने हमने आपसे हाथ मिलाया, तो आपने एक हाथ आगे बढ़ाया, तो हम समझ जाएंगे कि आपका नज़रिया कैसा है, क्योंकि आप एक हाथ आगे बढ़ा रहे हैं शेक हैंड करने, है ना। तो आपका आप क्रॉस लेग करके बैठे हैं तो आप कैसी पर्सनालिटी के हैं, आप ओपन लेग्स करके बैठे हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी, ये सारी चीज़ों को जज करता है वो। और इसीलिए इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगली मैथडोलॉजी है ऑब्जर्वेशन, देखना, खुली आंखों से निरीक्षण, है ना, इंस्पेक्शन थ्रू द आईज। आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तापमान क्या रहेगा, आंधी आएगी कि नहीं, भारत मैच जीतेगा कि नहीं, ये सब हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं। और ये ऑब्जर्वेशंस हम नेचुरल सेटिंग में भी करते हैं, लैब सेटिंग्स में भी करते हैं और फील्ड सेटिंग्स में भी। ऑब्जर्वेशन कई तरीके के होते हैं। नेचुरलिस्टिक यानी हम नदी किनारे चले गए और वहाँ पे हमने देखा है कि नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसे। अभी मैंने हरसूद में एक काम किया था कि हरसूद शहर को पूरा नया बसाया गया, आपको पता होगा एमपी में हरसूद नर्मदा सागर परियोजना में वो पूरा डूब गया। तो डूब के क्षेत्रों में आए लोगों का वेलबींग और सेटिस्फैक्शन लेवल वहाँ जाकर मैंने स्टडी किया। तो वो जो था नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, उनके पेन को मैंने देखा, उनके दर्द को मैंने देखा कि जिस घर को उन्होंने 40 सालों से बनाया था उसको छोड़कर वो लोग जा रहे, वो डूबत क्षेत्र में आ रहे, तो उनका आउटलुक क्या है, उनका परसेप्शन क्या है, उनका इमोशनल स्टेटस क्या है, वो सारा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। फिर है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, संरचित, कि इतने बजे पीएससी का इंटरव्यू है, आपको कमरा नंबर 2 में ठीक 2 बजे हाजिर हो जाए। तो आप अंदर गए, आपने क्या पहना है, सफ़ेद शर्ट ब्लैक ट्राउज़र, कितने बटन लगे हैं, कितने खुले हैं, हेयर स्टाइल कैसी है, नाखून कटे हैं कि नहीं, रिस्ट वॉच पहना है कि नहीं, ये सारा चीज़ जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, बाज़ार में घूमते हुए, मेले ठेलों में जो भी हम चीज़ों को देखते हैं, आते जाते पान ठेले में, सड़क पे चलते हुए, ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दूसरे देश के जासूस हमारे देश में आके रह रहे हैं और हमारे देश की सूचना दूसरे देश में भी, हमारे बीच इंडियंस जैसे रह रहे हैं, हमें पता नहीं है ना, सहभागी हैं, हमारे जैसा रह रहे हैं, इनसाइडर्स जो घर का भेदी जिसे कहते हैं, तो वो जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, हम में से एक होकर रह रहे हैं। नॉन पार्टिसिपेंट जो कि दूर से हमें देख रहे हैं, जैसे बारात का अवलोकन हम करते हैं, प्रोसेशन का, जुलूस का अवलोकन करते हैं, ये नॉन पार्टिसिपेंट। फिर हम आते हैं डायरीज मेथड। डायरीज मेथड क्या है कि डायरी जो है एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म जो यूज़र है कि डायरी में आप क्या लिख रहे हैं, क्या क्या बातें, कौन कौन से इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरीके से आपका बिहेवियर है, कितने कितने इंटरवल में आप डायरी लिख रहे हैं, और डायरी को आपने कितने दिनों से नहीं लिखा है, आदि बातों को जब हम स्टडी करें तो उसे हम डायरीज मेथड कहते हैं। और डायरी जो मेथड है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में, और इसके अलावा अनेक जो कंटेंट एनालिसिस जो हम करते हैं, आइटम एनालिसिस जो करते हैं, किस मूड में, कहते हैं ना जो व्हाट्सएप मैसेज भी आपकी पर्सोना को, आपके पर्सनालिटी को बताते हैं कि आप किस पर्सनालिटी के हैं। तो मैसेज करते हुए भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, है ना। तो डायरी में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आपका न्यूट्रिशन क्या है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपका मीडिया एक्सपोजर क्या है, आपकी हेल्थ कैसी रहती है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आप कितने टाइम डायरी यूज़ करते हो, है ना। ये सारी चीज़ों को गैदर करना। आपको मैं एक इंसिडेंस बताऊं कि मेरी एक स्टूडेंट जो है वो गायब हो गई। वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल। उसने मुझे एक लास्ट मैसेज किया था, प्रमोशनल मैसेज, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं थी वो बच्ची, तो उसने मुझे कोई प्रमोशनल मैसेज आया था लेविस जीन्स का, तो उसने मुझे भेज दिया था रात के 2 बजे। अगले दिन मेरे घर पुलिस आई
उन्होंने पूछा कि चूंकि उसने लास्ट मैसेज आपको किया है तो क्या आप उसको जानते हैं? सोचिए आप, दिस इज हाउ मैसेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डायरीज कंटेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया कि वो ऐसे ऐसे मेंटल स्टेट की है, और पूर्व में भी उसने ऐसे मैसेजेस मुझे किए हैं जो कि प्रमोशनल प्रकार के। तो फिर पुलिस चली। तो कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, क्या भेजा, क्यों भेजा, किस लिए भेजा, क्या लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, उस समय मेरी मानसिक दशा क्या थी, वगैरह वगैरह। रिसर्च में डायरीज का बहुत यूज़ है। एक किताब भी प्रकाशित हुई है, एंड टू एंड वैलिडेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन वाया डायरी स्टडी। कुछ बायोग्राफर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, लिटरेरी स्कॉलर्स होते हैं। देखिए, इंग्लिश की एक छात्रा ने अभी सवाल किया था, ये लोग डायरीज मेथड का यूज कि और क्या क्या कंटेंट लिखा गया, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स क्या है। बाद में ये बायोग्राफीज हो जाती हैं या और भी चीज़ें हो जाती हैं। हमारी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर हम कोई रिनाउंड पर्सन है तो बाद में उसके आधार पर हम एक किताब लिख सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, है ना। प्राइमरी डाटा बहुत महत्वपूर्ण है भाई। प्राइमरी डाटा तो प्राइमरी है, आपका अपना बच्चा है, आपने ये डेटा कलेक्ट किया है, तो ये आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्राइमरी डेटा का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ बहुत सी चीज़ों के फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी है ना। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना मुश्किल है, किस पर कलेक्ट करना ये जानना मुश्किल है, इसमें लोगों का कंसेंट मिलना मुश्किल है, डेटा को कम्युनिकेट करना, उसको एनालिसिस करना ये मुश्किल है, और डेटा कलेक्ट करने कहाँ जाएं ये डिसाइड करना मुश्किल है। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सेकेंडरी डेटा पे हम आते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जो ऑलरेडी किसी न किसी रूप में है हमारे पास, जो कि नेट पर उपलब्ध है। जैसे सेंसस का डेटा है, पॉपुलेशन डेटा है, एजुकेशन के संबंध में डेटा है, करियर चॉइस के संबंध में डेटा है, अर्निंग के संबंध में डेटा है, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में भी डेटा है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश है ना। ये सब सेकेंडरी डेटा जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से सेकेंडरी डेटा हमको मिल सकता है? किताबों से, रिकॉर्ड से, बायोग्राफी से, न्यूज़पेपर से और सेंसस से, डाटा आर्कीव से, इंटरनेट आर्टिकल से, रिसर्च आर्टिकल से और डेटाबेसेस से। सेकेंडरी डेटा का क्या इम्पोर्टेंस है कि भाई एक तो पका पकाया आपको डेटा मिल गया है, आपको कोई प्राइमरी डेटा कलेक्ट नहीं करना है, कोई पेन नहीं लेना है आप, है ना। जाइए, डेटा को निकाल लीजिए और डेटा से अपना रिसर्च कर लीजिए, जमा कर लीजिए, है ना। आपको रेस्पोंडेंट को परस्यू नहीं करना है, आपको किसी रेस्पोंडेंट को ये नहीं कहना है कि भाई थोड़ा सा बता दो मुझे, मेरे डेटा कलेक्शन में हेल्प करो, मेरे क्वेश्चनर का आंसर दे दो, ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं करना। यू आर हैविंग डेटा अवेलेबल एंड यू हैव टू यूज़ द ऑलरेडी अवेलेबल डेटा। तो जैसे क्या होता है, कुछ डेटा जैसे ट्रांससेक्सुअल पे मेरी एक बच्चे काम कर रही है, ट्रांसजेंडर्स पे, ट्रांससेक्सुअल्स पे, तो यहाँ पे डेटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल, क्योंकि लोग कैसे बताएंगे कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांससेक्सुअल्स हैं, या अपनी बहुत सारी प्रेफरेंसेस को हमें नहीं बताएंगे। तो ऐसी दशा में जो डेटा हमारे पास है उसी को हम यूज़ करें, है ना। तो लिटरेचर रिव्यू की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो रिव्यू में हमें मिल गया, केस स्टडीज़ में मिल गया, पब्लिश्ड आर्टिकल्स में मिल गया, स्टैटिस्टिक्स में मिल गया, और उसके अलावा मीडिया में मिल गया, और कहीं कहीं मिल गया हमको सारा डेटा, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। सेकेंडरी डेटा जो है वो देखिए, जो चीज़ सेकेंडरी है वो तो सेकेंडरी है, जो चीज़ प्राइमरी है वो प्राइमरी है ना। प्राइमरी का इम्पोर्टेंस अलग ही होता है, सेकेंडरी का इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं होता। कई जगह क्या होता है, सेकेंडरी डेटा को कई बार उसी डेटा को हम कई बार यूज़ करते हैं, और हम देखने वाला ये कहता है कि ये डेटा कुछ देखा हुआ सा लगता है ना। तो सेकेंडरी डेटा के साथ ये दिक्कत हो सकती है कि आप बार बार उसी का रिव्यू करके क्या साबित करना चाहिए। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदे भी मैंने बता दिए, नुकसान क्योंकि भी खर्चीला नहीं है, आरामदायक है, बहुत सारी दिक्कतें इसमें नहीं हैं। जाइए, डेटा पका पकाया डाटा ले लीजिए, यूज़ कर लीजिए। लेकिन दिक्कतें ये है कि ये डेटा आपका अपना नहीं है, ये दूसरे का डेटा है। आपको सोर्स बताना पड़ेगा कहाँ से डेटा लिया है, और उसके साथ साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि ये डेटा जो है मेरे द्वारा लिया गया नहीं है, और टाइम के साथ वो डेटा बदल जाए, है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम द सेकेंडरी डेटा अंडरगोज चेंज।
उसमें एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो जाएगा, देश काल का इफेक्ट हो जाएगा, ये सब आपको देखना। फिर बहुत सारे पब्लिश्ड प्रिंटेड सोर्सेज हैं जिनसे भी आप रिसर्च कर सकते हैं, है ना, कि न्यूज़पेपर में क्या आ गया, पब्लिशिंग कंपनी में मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, इनको पढ़कर भी आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिश्ड प्रिंटेड सोर्स। फिर बुक्स के द्वारा, आजकल तो ई बुक्स कहीं भी बैठ जाइए, बच्चों को लाइब्रेरी में होना जरूरी नहीं है, नेट फैसिलिटी होना चाहिए और बुक्स से डेटा कलेक्ट कर लीजिए, जर्नल से डेटा कलेक्ट कर लीजिए, पीरियोडिकल से डेटा कलेक्ट कर लीजिए, इंफॉर्मेशन ले लीजिए, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से डेटा कलेक्ट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर। बहुत सारे डेटा हमारे डेली न्यूज़ में आता है कि इतने बच्चे, आज ही मैं भी समाचार सुन रही थी कार चलाते हुए, तो मैंने देखा कि इतने करोड़ बच्चे पैदा हो चुके हैं 20 साल में, ऐसा बता रहा था, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है कोविड से। तो ये सारा जो डेटा है हमको अपने बुक्स में मिल रहा है, जर्नल्स में मिल रहे हैं, पीरियोडिकल्स में मिल रहा है, उस डेटा को भी आप यूज़ कर सकते हैं यदि आप डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहते। ई जर्नल्स के द्वारा आपको बहुत सारा डेटा मिल सकता है, वेबसाइट से मिल सकता है, आप तरह तरह का सर्फिंग करते रहिए, आपको बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन पर आप रिसर्च कर सकते हैं, पर इनकी रिलायबिलिटी के बारे में हम नहीं कर सकते। वेब ब्लॉग्स, बहुत सारे लोग ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, वहाँ पर आपको कोई डेटा मिल सकता है, डायरीज लिखते हैं, वहाँ पर आपको डेटा मिल सकता है, वेब डायरीज होती हैं उन पर आपको डेटा मिल सकता है। फिर मैंने अगर कोई रिसर्च किया और वो पब्लिश नहीं हुआ, तो अनपब्लिश्ड पर्सनल रिकॉर्ड, कि मैंने एक रिसर्च किया लेकिन उसको पब्लिश नहीं कराया, वो वैसे का वैसे पड़ा है, तो उस पर भी मैं डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। डायरीज बहुत पर्सनल रिकॉर्ड्स, कि मैं साल भर डायरीज लिखती हूँ, मतलब 37 सालों से लिख रही हूँ, तो उससे मेरे बारे में बहुत सारा डेटा मिल सकता है। लेटर्स जो आप लिखते हैं, आजकल लेटर्स यानी ई लेटर्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, है ना, ये सारे से भी डेटा मिल सकता है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड से आपको डेटा मिल सकता है, सोशल मीडिया से आपको डेटा मिल सकता है। तो ये इस तरीके से ये पहला जो डेटा कलेक्शन का पार्ट है ये मेरा ख़त्म हुआ है। अब इस सेशन को मैं ओपन कर लेती हूँ कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए। उम्मीद है मैंने ठीक से बताया होगा। बस 19 मिनट की बैटरी मेरे पास शेष है और यहाँ पे 4 बजे तक का पावर कट है, तो उम्मीद है मैं ठीक से आपको समझा पाई होंगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछिए। जी मैं पूछता हूँ। जी सर पूछिए। मैम ये मैं पूछना चाह रहा था, संकल्पना तथा चर में अंतर क्या है? इसमें संकल्पना और चर में? संकल्पना तो हाइपोथेसिस है आपकी, चर चर वेरिएबल है। हाइपोथेसिस या संकल्पना क्या है? प्रश्न का संभावित उत्तर है। आप हिंदी के हैं क्या? कौन से विषय के हैं? वो वैसा एग्जाम्पल। मनोविज्ञान का मैडम। हाँ, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के हैं। तो चर का मायने ये है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी में, जैसे एक एक्सपेरिमेंट ये हो गया कि क्या एक व्यक्ति की पर्सनालिटी का प्रकार उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है ना? तो यहाँ पे पर्सनालिटी का जो प्रकार हुआ, एक्सट्रोवर्शन, इंट्रोवर्शन, न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, ये जो उसकी पर्सनालिटी का प्रकार हुआ ये चर हुआ, है ना? और उसका जो बिहेवियर हुआ वो भी चर हुआ। तो पर्सनालिटी के जो प्रकार हैं वो स्वतंत्र चर है और उसका जो बिहेवियर हुआ है वो परतंत्र चर है। अब इस पे हमको एक संकल्पना बनानी है कि मेरा प्रश्न ये है कि क्या व्यक्तित्व व्यवहार को प्रभावित करता है। उस पर एक मुझे संकल्पना बनानी होगी कि हाँ, व्यक्तित्व व्यवहार को प्रभावित करता है। तो मैं 3 तरह की संकल्पनाएं बना सकती हूँ, जिसे हम परिकल्पना कहते हैं या हाइपोथेसिस कहते हैं। वो 3 तरह की परिकल्पनाएं ये हो सकती हैं: शून्य परिकल्पना, अफर्मेटिव हाइपोथेसिस और नेगेटिव हाइपोथेसिस। अफर्मेटिव यानी धनात्मक परिकल्पना कि हाँ, व्यक्तित्व व्यवहार को प्रभावित करता है,
कर सकता है। और नेगेटिव परिकल्पना व्यक्तित्व का व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और नल हाइपोथेसिस कि दोनों आपस में संबंधित नहीं है ना। तो अभी समझ गए आप संकल्पना क्या है, जी प्रश्न का संभावित उत्तर है। तो बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसलिए मुझे अपने लेक्चर को स्पीड अप करना पड़ा बेटा लैपटॉप जी। की, और यहाँ पे पावर कट है। तो Any आपका other क्लास query? सुपर डुपर था मैम, आप लोग को लेक्चर ठीक लगा या नहीं लगा? ये सुपर डुपर क्लास था। बहुत ही अच्छा मैम, बहुत अच्छा था। मैं बहुत ही अपना नंबर यहाँ लिख देती हूँ बेटा, और कोई आपके सवाल हो तो आप कभी भी मुझे- एक्सीलेंट था मैडम। बहुत ही अच्छा मैम, सच में बहुत मैम, इम्प्रेसिव। बहुत अच्छी क्लास थी। हाँ। ये मेरा नंबर है बेटा, व्हाट्सएप पे और कॉल पर मैं इस नंबर पे उपलब्ध हूँ। डॉक्टर उषा किरण अग्रवाल, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स पीजी कॉलेज में पढ़ाती हूँ। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ भारतीय यूनिवर्सिटी का, प्रोफेसर आलोक जी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ लेक्चर दे पाऊँ। और एक शानदार प्लेटफॉर्म देने के लिए आप सभी का अभिवादन और धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मैम मच आपका मैम। ज्यादा थैंक यू अभिवादन, आपका ज्यादा आभार धन्यवाद मैम। Thank you, ma'am. Officially, on the behalf of Bharati Vishwavidyalaya Durg, I अंजना, कोई सवाल है extended क्या बेटे? any other query? Thank you so much, ma'am. Any other query? so much, ma'am. If there is no query, then officially I end up this program. Thank you, ma'am. Okay, so on the behalf of Bharati Vishwavidyalaya Durg, I extended a really hearty vote of thanks to our special guest, Dr. Usha Kiran Agrawal ma'am, who spared time from her busiest schedule, and today we had an opportunity to hear you ma'am, and definitely your thoughts, your knowledge, this will surely encourage and motivate our research scholars in their near future. Thank you so much ma'am. With these words I end up this guest lecture. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.